انسانی تاریخ میں عظمت اور جدوجہد سے بھرپور اس تارے کا ایک اور دن آن پہنچا۔ وہ دن جب 1 مئی 1886 کو سرمایہ دار طبقے کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو خون میں نہلا دیا گیا تھا۔ انسانی تمدن کی بنیاد سمجھے جانے والے دن پر سہیل کیسر کی خصوصی رپورٹ۔ بلا شبہ 1 مئی کارخانوں، کھیتوں کھلیانوں، کانوں اور دیگر کارگاہوں کی بھٹی میں جلنے والے لاتعداد محنت کشوں کا دن ہے۔ وہ دن جب 1 مئی 1886 کو مزدوروں نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے ایک دن میں 8 گھنٹوں تک کام کرنے کے اوقات کار اور کچھ دیگر سہولیات حاصل کیں۔ وقت کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی صورتحال بہتر تو ہوئی، لیکن بیشتر صورتوں میں حالات ابھی بھی ناگفتہ ہیں۔ پاکستان میں جہاں پہ ٹریڈ یونین ہے جو کہ بہت کم ہے، وہاں پہ تو ہم کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے ایسی جگہیں ہیں، ادارے ہیں جہاں پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اب جو حالات ہیں وہ بالکل شکاگو میں جو حالات تھے، صورتحال تھی، اس سے بھی بدترین صورتحال ہے موجودہ۔ اپنی جدوجہد کے نتیجے میں مزدوروں نے جو کچھ حاصل کیا، اسے حاصل کرنا اتنا آسان ہرگز نہیں تھا۔ سرمایہ داروں کے اعماء پر پولیس نے مزدوروں سے احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے بے شمار مزدوروں کی جان لی۔ انہی میں سے ایک شخص نے خون میں ڈوبی ہوئی اپنی قمیض ہوا میں لہرائی تو پھر سرخ رنگ مزدوروں کا علامتی رنگ بن گیا۔ یہ اسی جدوجہد کا نتیجہ رہا کہ آج ہمارے جیسے ممالک میں بھی کم از کم قوانین تو تشکیل دیے ہی جا چکے ہیں۔ 36 کنونشنز کا پاکستان سگنیٹری ہے اور ان سب کنونشنز پہ بڑا خاطر خواہ کام ہوا ہے، لیجسلیشن بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر چائلڈ لیبر پہ بڑا کام ہوا، اس پہ بھی ایکٹ بنا، اس کا سروے ہوا، ڈیٹا کلیکٹ ہوا، اور ایون جہاں تک کہ اب تو ڈومیسٹک ورکرز اور ہوم بیسڈ ورکرز کا بھی ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ مزدوروں کی انہی قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہی آج یوم مزدوراں منایا جا رہا ہے۔ دل کی تسلی کے لیے کم از کم ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی نسبت آج ہمارے مزدوروں کے حالات کار کسی قدر بہتر ہیں، لیکن انہیں قابل اطمینان ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اب ان کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ کیمرامین بلال احمد اور محمد شہباز کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور۔ یوم مئی پر مزدوروں کو خراج تحسین صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ لیبر کو جدید ہنر فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں لیبر کو ہنر فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ معاشی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کے باوجود محنت کشوں کو مسائل کا سامنا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں لیبر کو ہنر فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ آجروں سے درخواست ہے کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محنت کش طبقے کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ ملک کی ترقی میں محنت کشوں کے اہم کردار سے انکار ممکن نہیں۔ مزدوروں کے مسائل کے بروقت حل کے لیے خودکار نظام بنا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے اپنے پیغام میں کہا کہ محنت کش ہمارے ہیرو ہیں جو رزق حلال کما کر معیشت کو مضبوط کرتے ہیں۔ محنت کشوں کی عظمت کو سلام، ان کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی و کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ ورکرز کے لیے کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کی ہے۔ پیداوار کی بڑھوتری کے لیے مزدوروں کو جدید ترین ٹیکنالوجیز سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورکرز اور آجر قومی ترقی کی کوششوں میں شراکت دار ہیں۔ مزدوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات جاری۔ صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کی جانب سے لیبر ڈے پر مزدوروں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی بالٹن روڈ سے شروع ہو کر پنجاب اسمبلی پہنچ کر ختم ہوئی۔ ریلی میں مزدوروں کی بڑی تعداد شریک۔ مزید جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، مزدوروں کے عالمی دن کی مناسبت سے ملک بھر میں جو ہیں وہ مزدوروں کے عالمی حقوق کے حوالے سے تقریبات جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں فیروز پور روڈ پر، جہاں پر صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کی جانب سے مزدوروں کے حقوق کے لیے وہ ریلی جو نکالی جا رہی ہے۔ ریلی جو ہے وہ والٹر روڈ سے شروع ہو کر اسمبلی ہال تک جائے گی۔ اس وقت میرے ساتھ صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کے کچھ رہنما موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج یوم مئی جو کہ پوری دنیا میں بڑے جوش و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ہم صنعتی مزدور اتحاد پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ ایک بھرپور جوش و خروش والی ریلی نکال رہے ہیں۔ ہم شکاگو کے مزدوروں کی ان محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا اسمبلی ہال پہ جا کر یہ مہنگائی مارچ کا
मेन मकसद है और असम्बली हाल पर जाकर हम पड़ाव करेंगे। एक और रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करें। सर आप बताइएगा, मजदूरों का आलमी दिन है, क्या कहेंगे? मजदूरों के सालमी दिन के मौके पे सबसे पहले हम शिकागो के जो हमारे मजदूर हैं उन्होंने जो कुर्बानी दी उस कुर्बानी को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। उसके साथ आज हमारा रैली का मकसद जो है वो गरीब मजदूर जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है उसके लिए हम ये रैली हमने निकाली है। हमारी कम से कम तनख्वाह मजदूरों की 50,000 रुपये होनी चाहिए और हमारी जो पेंशन है बुढ़ापे की वो मिनिमम वेज के बराबर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इन रहनुमाओं की बात सुनी। इन दोनों का यही कहना था कि मजदूरों की आमदनी में इजाफा किया जाए। कम से कम मजदूर की जो माहाना आमदनी इसमें 50,000 तक का इजाफा किया जाए। मजदूरों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, मजदूरों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। इनका भी यही मुतालबा है कि इनकी आमदनी है उनमें इजाफा किया जाए ताकि महंगाई के दौर में इनका गुजारा जो है वो आसान हो सके। जी शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। शहर में इस दिन से बेनियाज मजदूरों को आज भी रोटी कमाने की फिक्र है। मजदूरों का कहना है कि आज छुट्टी की तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। हमारे नुमाइंदे राहिल अली मजदूरों के दरमियान मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, इस हवाले से मजदूरों का मज़ीद क्या कहना है? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी ये दिन जो है वो सरकारी सतह पर मनाया जाता है। मगर इस दिन के हवाले से जो है वो कहा तो ये जाता है कि मज़दूरों का आलमी दिन है, लेकिन इस दिन पर भी हम जो है वो मज़दूरों को काम करते हुए देखते हैं। अभी भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मज़दूर जो है वो काम करें, अपनी मजदूरी करें ताकि अपने घर वालों का पेट पालने के लिए जो है वो पैसे इकट्ठे किए जा सकें। पॉलिसियाँ भी बनाई जाती हैं, हुकूमत की तरफ से दावे भी किए जाते हैं कि मज़दूरों के लिए हम बेतहाशा जो है वो काम कर रहे हैं, उनको हकूक़ दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ी, उनके बच्चों की तालीम के लिए जो है वो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उनकी सेहत के हवाले से जो है इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़बानी जमा खर्च जो है वो मालूम होती हैं। असल में मज़दूरों के क्या हालात हैं वो आलमी दिन के मौके पर भी जो है वो काम करने पर मजबूर हैं। उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, पूरी दुनिया आज मज़दूरों का आलमी दिन मना रही है, आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पर हम लोग क्या करें, 1000 रुपया दिहाड़ी है तो 1000 में हम घर का काम चलाएं या बच्चों को दें या क्या करें या अपना खर्चा करें। 1000 में हम छुट्टी करेंगे आज तो कल को हम क्या करेंगे? आज हम छुट्टी करेंगे, एक छुट्टी कर लेंगे तो हमारे 4 दिन जो है ना बड़े मुश्किल से गुजरेंगे। हुकूमत क्या करे, कुछ नहीं कर रहे ये लोग, आप बस खा रहे हैं। हमारी छुट्टी है, मना अमीर लोग रहे हैं, हम गरीब जो हैं हम छुट्टी मनाएं तो हम भूखे बैठे बच्चों को मार दें, हम क्या करें? छुट्टी मनाएं तो बच्चों को मार दें, ये कहना है मजदूरों का जिनके नाम पे आज आलमी दिन मनाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मजदूर जो हैं वो सड़कों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि हम मजदूरों को सहूलियात दे रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को जो है वो बेहतर करें। मगर सूरत हाल ये है कि आज तमाम वो लोग जिन्होंने पॉलिसियाँ बनाई हैं वो घर में बैठ के छुट्टी मना रहे हैं, जबकि जिन लोगों के लिए पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, जिन लोगों के लिए ये दिन मनाया जाता है, वो आज भी सड़कों पर जो है वो मेहनत मजदूरी करें ताकि अपने और अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल सकें। जी शुक्रिया राहिल आपका। मेहनत कशों के लिए मनाए जाने वाले दिन भी मज़दूर इस दिन की अहमियत से बेखबर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में जुटा हुआ है। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मज़दूरों के बड़े मसाइल हैं। मज़दूरों का कहना है कि लेबर डे सिर्फ अमीरों का दिन है। हमारे लिए लेबर डे वो दिन होता है जब दिहाड़ी लग जाए। लाखों मेहनत कशों को आज भी सेहत की सहूलियात समेत सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। कम अज़ कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हुआ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਬੂਠ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। जी मैं योम माई के हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, कि योम माई के हिसाब से जो मज़दूर की जो सैलरी है वो कम से कम फैक्ट्रियों में जो है ना वो कम से कम 40,000 कर देनी चाहिए। महंगाई बहुत है। आज के दिन हर कोई आराम कर रहा है, अमीर लोग तो आराम कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं इधर खड़े हुए हैं मजदूरी के लिए। कोई आएगा हमें ले जाएगा मजदूरी के लिए, चलो बच्चों का पेट पाल सके, बड़ी मुश्किल से। यकम मई मजदूर डे है, लेकिन मजदूर रोड पे हैं, बड़े बड़े अफसरान जो है घर पे सो रहे हैं। मजदूर दिहाड़ी के चक्कर में कई दिन दिहाड़ी लगती नहीं, अगर लगती है एक दिन लगती है तो 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं। 1000 रुपये में क्या बनता है? इतनी महंगाई है, घ्यो लें, चीनी लें, क्या चीज़ लें? ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇ ਹੈਗਾ ਵੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਲਣੀ बड़ी मुश्किल हो गई है। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें पीटीआई का मजदूरों के आलमी दिन पर सियासी ताकत का मुजाहिरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज 6 मई पर रैली निकालेगी। दोपहर 1 बजे शुरू होने वाली रैली का आगाज लिबर्टी चौक से होगा, जो नासिर बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। पीटीआई की रैली की क़ियादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन उनसे मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। मज़दूरों के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज फिर भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है और एक बड़ी रैली का अहतमाम किया गया है पीटीआई की जानिब से, जिसका आगाज़ लिबर्टी से होगा और नासिर बाग पर पहुंचकर ये इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन जो कारकुनान हैं वो अभी से ही ज़मान पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ ज़मान पार्क से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान एक रैली की शक्ल में लिबर्टी चौक पहुँचेंगे और वहाँ फिर से वो रैली होती हुई नासिर बाग पहुँचेगी। जो ज़िली हुकूमत की जानिब से पीटीआई को NOC जारी किया गया है, उसके मुताबिक रैली का जो वक्त है वो 1 बजे मुकर्रर किया गया है और 6 बजे ये रैली नासिर बाग पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। इस दौरान जो रूट इख्तियार किया जाएगा, ये रैली लिबर्टी चौक से फ़िरोज़पुर रोड पर होगी और वहाँ से मुस्लिम टाउन, इचरा, मजंग से होती हुई ये लोअर माल पहुंचेगी और वहाँ पर ये नासिर बाग पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी, जिनमें मुख्तलिफ़ मुकामात पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली का इस्तकबाल भी किया जाएगा और उसकी भी तैयारियां इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो कारकुनान हैं उनसे खिताब भी करेंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई अपना पहला खिताब लिबर्टी के मुकाम पर पहुँच कर करेंगे, जहाँ से रैली का आगाज़ होना है। इस दौरान जो ये सारा रास्ता है वहाँ पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो बैनर्स हैं, फ्लेक्सिस हैं और स्टीमर्स हैं, उनको अवेज़ा किया गया है, जिसमें पीटीआई के कारकुनान की जानिब से अपने कायद के साथ जो इजहार यकजहती है वो किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो टिकट होल्डर्स हैं और जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको ये आज की इस रैली में शिरकत के लिए मदऊ भी किया गया है कि वो कारकुनान के साथ इस रैली में शिरकत करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब जो ज़्यादा फोकस है वो लाहौर पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये तीसरा पावर शो है जो कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। इससे कबल 13 मार्च को ज़मान पार्क से दाता दरबार तक इंतखाबी रैली का आगाज़ किया गया। उसके बाद मार्च के आखिर में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर सियासी ताकत का मुजाहरा किया और आज भी ये एक रैली निकाली जा रही है जिसमें भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद बोले, रियासती अदारों पर चढ़ाई करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को साजिश के ज़रिए इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन काबिल कबूल नहीं। कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमज़ोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों में बैठे लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी की ख्वाहिश पे, किसी के दबाव में। अगर इस इंतशार पसंद, इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे, पाकिस्तान की तरक्की पर कंप्रोमाइज करोगे। हम इलेक्शन से भाग रहे हैं और भाई हमें तो 3 दफा इलेक्शन से बाहर रखा, हम उस वक्त ना भागे जब हमारी क़यादत को नाहल किया गया। आप चौथी दफा भी 2023 में अगर हमारी क़यादत को बाहर रखकर आप कहोगे ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये उसी मनसूबाबंदी का दूसरा पार्ट है। पीटीआई की आज लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली। पीटीआई की सीनियर क़यादत के लिए कंटेनर्स लिबर्टी चौक पहुंचा दिया गया। लिबर्टी चौक के चारों तरफ पार्टी बैनर्स भी आवेजा। पुलिस की भारी नफरी भी लिबर्टी चौक पहुंच गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। बिल्कुल, पीटीआई आज अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा जो है वो करने जा रही है। इसी सिलसिले में लिबर्टी चौक में जो है तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हुई हैं। सीनियर क़यादत के लिए का जो कंटेनर है वो भी लिबर्टी चौक जो है वो पहुंचा दिया गया है। लिबर्टी चौक में स्क्रीन की जो है वो पहुंचा दी गई है। स्क्रीन के साथ साथ बड़े बड़े स्पीकर के इंतजाम भी हैं वो किए गए हैं, जिनके जरिए जो है पार्टी तरानों पर
کارکنان کا جو ہے لہو وہ گرمایا جائے گا، جبکہ لبرٹی کے چاروں اطراف پارٹی بینر بھی اویزاں کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھی بھاری نفری جو ہے وہ لبرٹی چوک اس وقت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ لبرٹی چوک کے اطراف میں سیکورٹی کے لیے بیریئرز اور واٹر پروف گیٹ بھی جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ لبرٹی چوک میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ 1 بجے کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی کارکن جو ہے وہ ابھی لبرٹی چوک پہنچنا شروع نہیں ہوئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی نے 1 بجے کا ٹائم کیا تھا۔ کارکنان کی آمد کا جو منتظر ہے پی ٹی آئی کی جانب لبرٹی چوک اس وقت جو ہے ویران پڑا ہوا ہے اور کارکنان کی آمد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے زین۔ اب کچھ بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ شہر کا موسم بارش کے باعث خوشگوار ہو گیا، آسمان پر کالی گھٹائیں، مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے لے کر 5 مئی تک ملک کے بیشتر حصوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی پر بات کریں گے سامیہ سعید سے۔ سامیہ، موسم کا حال بتائیے گا۔ کی جائے موسم کی تو شہر لاہور کا جو موسم ہے اس وقت خوشگوار ہو چکا ہے۔ یہی دیکھنے میں ہے کہ صبح کی جو ہلکی بوندا باندی تھی اس نے شہر لاہور کے موسم کو اور خوشگوار کر دیا ہے۔ ہر سو جل تھل ایک ہو گیا ہے اور ہر نظارہ جو ہے وہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ اس وقت کے بھی موسم کی میں بات کروں تو اس وقت جو ہے وہ باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتی ہوں گی کہ موسم کتنا خوشگوار ہے۔ اگر محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج جو ہوا کی رفتار ہے وہ 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی گئی ہے، تو یہی دیکھنے میں نظر آئے گا کہ آج سارا دن جو موسم ہے وہ اسی طریقے سے ہی خوشگوار رہے گا۔ اگر میں بات کروں درجہ حرارت کے حوالے سے تو اس وقت کا جو درجہ حرارت ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ صبح سویرے بارش ہوئی، اگر اس بارش کے حوالے سے میں بات کروں تو جیل روڈ پر جو ہے آج 0.75 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسی طرح گلبرگ میں جو ہے وہ 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مغل پورہ میں 1.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہی دیکھنے میں آئے گا کہ موسم جو ہے وہ اس طرح ہی خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ 5 مئی تک جو ہے وہ موسم اس طرح خوشگوار رہے گا اور ہلکی بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ نہ صرف لاہور، پنجاب کے بیشتر علاقوں میں جو موسم ہے وہ خوشگوار رہے گا اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ اگر میں بات کروں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو لاہور شہر میں جو آج فضائی آلودگی میں بھی ہمیں کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 151 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر اسی طرح بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو جوہر ٹاؤن کا جو ہے وہ 120 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ٹی ایچ اے فیز 5 کا جو ہے وہ 103 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو یہی دیکھنے میں نظر آئے گا آنے والے دنوں میں بھی کہ موسم جو ہے وہ خوشگوار رہے گا اور ہلکی بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہی جاری رہے گا۔ سامیہ، لاہوریے تو خوابوں کے شوقین ہیں اور آج لیبر ڈے کی چھٹی بھی ہے اور موسم بھی خوشگوار ہو گیا، تو خوابوں کے پوائنٹس پر لاہوریوں کی جانب سے رخ کیا گیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا گیا ہے تو وہاں پر کیا صورتحال ہے، اپڈیٹ کیجیے۔ خوابوں کی تو انارکلی میں جو ہے آج مجھے اچھا خاصا رش دیکھنے میں نظر آیا، کیونکہ آج صبح میں بھی جو تھی انارکلی میں ناشتہ کرنے گئی تھی۔ بارش ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے موسم خوشگوار ہو تو ساتھ ساتھ جو ہے گرما گرم ناشتے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو انارکلی میں نے یہی دیکھا کہ آج چھٹی تھی تو بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے، فرینڈس کے گروپ آئے ہوئے تھے اور خوابوں پہ ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ کوئی جو ہے وہ گرما گرم حلوہ پوڑی کھا رہا تھا، کوئی بونگ پائے کھا رہا تھا اور موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج تو موسم بھی اچھا اور ساتھ ساتھ چھٹی بھی ہے، تو لاہوری جو ہیں وہ خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سامیہ، یہ بھی بتائے گا کہ محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے، بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور وقفے سے بارشیں ہوں گی یا موسلادھار بارش کی بھی پیش گوئی ہے؟ جائے محکمہ موسمیات کے حوالے سے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے ہی خوشگوار رہے گا، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو ہے اس وقت موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور وقفے سے جو بارش ہے وہ برس رہی ہے۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ 5 مئی تک جو موسم ہے وہ اسی طریقے سے خوشگوار رہے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے اب آنے والے دنوں میں مئی، جون، جولائی گرمی کے مہینے شروع ہونے والے ہیں، تو اس سے پہلے جو خوشگوار موسم ہے اس سے لاہوری جو ہیں وہ خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سامع یہ بھی بتائے گا کہ اکثر دیکھا گیا ہے جب بارش ہوتی ہے تو لیسکو کے فیڈر سٹرپ کر جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہ کن کن علاقوں میں بجلی گئی؟
बिल्कुल, आज जो सुबह की अगर मैं बारिश के हवाले से बात करूं तो आज सुबह जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी ही देखने में नज़र आई है। तो इस तरह जो है बिजली तो अभी तक कहीं भी किसी भी इलाके में नहीं गई, इस तरह की कोई तफसीलात अभी तक मौसूल नहीं हुई हैं। लेकिन अगर बारिश तेज़ होती है तो तब ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा सकते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो मौसम है वो खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और जो है सुबह जो है वो हल्की बूंदाबांदी हुई है। कहीं हमें ठंडी हवा चल रही है, मौसम खुशगवार है। बहुत शुक्रिया सामिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि तमाम तर एसीज अपने इलाकों का दौरा करके इंतजामात का मुकम्मल जायज़ा लें। नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए मशीनरी और अफरादी वसाइल भी दस्तियाब रखें। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि आज शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, जिस पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने बारिश की सूरत में महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी की सूरत में जो है उसमें महकमों को फील्ड में रहने की हिदायत की है। इस वजह से मजीद बारिश का भी इम्कान है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तमाम एसीज अपने इलाकों का दौरा करें, तेज़ बारिश की सूरत में इंतजाम मुकम्मल करें। वासा और MCL इसके साथ साथ LDA मशीनरी के हमरा फील्ड में मौजूद रहे। डिस्पोजल स्टेशन इसके साथ साथ जनरेटिंग स्टेशन जब मुकम्मल तौर पर पार होने चाहिए। कमिश्नर लाहौर ने हदायत की है कि एसीज वासा डायरेक्टर्स और जोनल अफसरान मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहेंगे। तमाम सोरिंग पॉइंट्स पर हंगामी मराकज़ फाइल और मशीनरी मौजूद होनी चाहिए, जबकि हंगामी सूरत हाल में वासा MCL LDA की टीमें फौरी रिस्पॉन्स करेंगी। तमाम अलर्ट पासिस से बारिशी पानी का निकास फौरन होना चाहिए। शहर के नशेबी इलाकों में नक्कासिया मशीनरी और सादी दस्तियाब रखेंगे। सड़क पर पानी जमा होने की इतला वासा कंट्रोल को दी जाएगी, जबकि फौरी तौर पर इसका रद्द-ए-अमल किया जाएगा। अब तक की सूरत के मुताबिक जे रोड पर 0.75 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि एयरपोर्ट के गिरद नवाब भी बारिश का इम्कान है और तेज बारिश का इम्कान है। इसके साथ साथ लक्ष्मी चौक में भी 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, अपरमाल में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है, मुगलपुरा में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, ताजपुरा में 0.5 और इसके साथ साथ चौक नावदा में भी 0.5 और इस तरह शहर के जो मुतअद्दिद इलाके हैं हल्की फुल्की बारिश जारी है। मगर कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि तेज बारिश की सूरत में जो अफसरान हैं वो फील्ड में मौजूद रहेंगे और शहरियों जहाँ पे निकासी आब का मामला है वहाँ पे पूरी तौर पर इसको हल कराया जाएगा और खास तौर पर जो शोर पॉइंट है उन पर जो है तमाम टीमें वक्तन फौरन चेक करती रहेंगी और डिस्पोजल स्टेशन को पार रखा जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। लेबर डे पर पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की एहतजाजी रैली। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का मजदूरों को उनके जायज़ हकूक़ देने का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा फहद अमीन से। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ यूनियंस की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान रेलवेज़ की यूनियन है, इसके साथ साथ नादरा, पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन और इसके साथ साथ जो है वो रेलवे उसातिज़ा की जो है वो रैली वो भी यहाँ पर पहुँची है। तमाम जितने भी जो है वो यूनियंस हैं उनकी जानिब से मजदूरों को उनके जायज़ हकूक़ देने का मुतालबा किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो आल पाकिस्तान नादरा एम्प्लॉइज़ यूनियन भी मौजूद है और इसके साथ साथ आल पाकिस्तान रेलवे टीचर्स एसोसिएशन भी मौजूद है। इनसे मज़ीद जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, आज आलमी दिन के हवाले से मजदूरों के आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या क्या मुतालबात हैं आपके? देखिए जी, सामने क्यों पहली बात ये है कि मुझे 2004 में इन्होंने टर्मिनेट किया था और तब से लेकर अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। फेक डिग्री वाले हैं जो भी हैं, इन सबकी इन्होंने कोई पर्सनल हेयरिंग नहीं की, हमें इन्होंने बुलाया तक नहीं है। मैंने वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आला ये वज़ीर आज़म को भी मैंने एप्लीकेशंस दी हैं, वज़ीर दाखिला को भी दी हैं, वफाकी मोहतसिब को भी दी हैं, चेयरमैन नादरा को भी दी हैं, HR डिपार्टमेंट भी दी है। मैंने कहाँ एप्लीकेशंस नहीं दी हैं, इन्होंने मेरी आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त जो है वो रेलवे के उसातिज़ा भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ स्कूलों में ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि इनकी तनख्वाह जो है वो 13,500 रुपये है। इनका मुतालबा ये है कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इन टीचर से बात करते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा मैडम, बताइएगा कितनी तनख्वाह है और आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, हम लोगों की तनख्वाह जो है वो 13,500 है, ठीक है। जिसको 20 साल हो गए हैं, उस 20 से 25 साल हो गए हैं, उनकी तनख्वाहों में अब हमारी मैडम जो है DG डायरेक्टर जो हैं उन्होंने
इंक्रीमेंट सिर्फ लगाई जो है वो 2000, 1500, 1000 करके, जो उनके पास मौजूदा वसाइल थे उसके हिसाब से। मिनिस्ट्री में उन्होंने लेटर भेजा है 25,000 करने का, मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी आया। 32,000 तो दूर की बात, 25,000 का कोई अभी तक फाइनेंस से कोई जवाब नहीं आया। और हम लोग जो है पिछले 20 से 25 साल वाले लोग शामिल हैं जिन्होंने इतने साल हो गए इस इदारे को दिए हैं। तो इतने सालों के बाद भी हमें ये हक ना दिया जाए कि हम कंफर्म हो, हमें रेगुलर किया जाए। इसके अलावा आप बताएं ज़रा, ये 2016 में 16 से इन लोगों ने हमारी छुट्टियों की तनख्वाहें देनी बंद कर दी। इतनी छोटी सी अमाउंट जो है वो भी रेलवे पे भारी है, जबकि बच्चों की फीसें भी हम इकट्ठी करें। सारे काम जो है रजिस्टर वर्क, क्लर्क का सारा काम जो है वो टीचर्स करती हैं। एक एक क्लास में 70 से 80 बच्चे हैं। इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद 2 दफ़ा इन लोगों ने बच्चों की फीसें बढ़ाई हैं। 2 दफ़ा फीसें बढ़ाने के बाद इन लोगों ने 500, 1000 और 1500 इस तरह करके, और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारे माली हैं, क्लर्क हैं, उनकी सिर्फ 12,500 तनख्वाह है। जी बिल्कुल, आपने रेलवे की जो है वो असातिज़ा की भी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इनकी तनख्वाहें जो है वो मज़दूर की कम से कम तनख्वाह से भी कम है। 13,500 रुपये जो है वो इन्हें तनख्वाह दी जा रही है। और दूसरी जानब आल पाकिस्तान नादरा एम्प्लॉयज़ की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है इनके जितने भी जो है वो मुलाजमीन को जो है वो निकाला गया था इनको बहाल किया जाए, और उसके साथ साथ तमाम नादरा के मुलाजमीन को जो है वो रेगुलर किया जाए। पाकिस्तान वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से भी यहाँ पर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 1 तोला सोना के बराबर की जाए। जी फहद, ये भी बताइएगा कि मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने एहतजाज करने वालों से राब्ता किया? जी बिल्कुल, आज चूँकि मज़दूरों का आलमी दिन है तो मज़दूरों की तंजीमों की जानिब से ये एहतजाज किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है, दोनों जानिब से ट्रैफिक रोकी गई है। मुख्तलिफ यूनियंस जो है वो यहाँ पर, उनके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ यूनियंस के जो है वो अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। किसी भी इदारे के जो है वो सरबराह की जानिब से इनसे ताहाल कोई रब्ता नहीं किया गया। जो रेलवे के असातिज़ा हैं, जो रेलवे की ख़वातीन टीचर्स हैं, इनका मुतालबा यही है कि इनकी तनख्वाह जो है वो 13,500 रुपये है, जो कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह से भी कम है। जबकि दूसरी जानब आल पाकिस्तान नादरा एम्प्लॉयज़ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यूनियन, उनका कहना है कि मुतअद्दिद मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के जो है वो मुलाजमत से निकाल दिया गया था। ताहाल जो है वो मुतअद्दिद बार ये जो है वो दरख्वास्त कर चुके हैं, मगर उन मुलाजमीन को दोबारा बहाल नहीं किया जा रहा। जबकि ज़्यादातर जो यहाँ पर यूनियंस हैं उनका मुतालबा यही है कि जो भी डेली वेजेस के मुलाजमीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन हैं, उन्हें रेगुलर किया जाए, क्योंकि महंगाई का तनासुब जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और महंगाई के तनासुब से जो है वो मजदूरों की तनख्वाह में इजाफे का भी मुतालबा यहाँ पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासर जो तबका हुआ है वो मज़दूर तबका हुआ है, और मज़दूरों के लिए इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाना भी जो है वो मुश्किल तरीन मरहला बनता जा रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है मगर इनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा दिखाई नहीं देता। हुकूमत की जानिब से मज़दूरों को जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। और आज मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से यूनियंस के ज़ेर तमाम यहाँ पर बड़ी तादाद में मज़दूरों की जो है वो इस एहतजाजों में, इन एहतजाजों में शिरकत हुई है। और उनका मुतालबा यही है कि हुकूमत दीगर तमाम मामलात को अलग रखे, मगर मज़दूर का जो हक़ है, जो जायज़ उसके हकूक़ हैं, वो उसे फराहम किए जाए, ताकि जो चूँकि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है वो मज़दूर का है, और मज़दूर को ही जो है वो मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इनका कहना यही है कि मज़दूर के लिए इस वक्त अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत जो है मज़दूरों के हवाले से खुसूसी मनसूबाजात बनाए और जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। महंगाई के तनासुब से मज़दूरों की जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। महंगाई बढ़ती जा रही है मगर मज़दूर की तनख्वाह जो है वो जू की तू है। दूसरी जानब जो रेलवे के टीचर्स हैं। बहुत शुक्रिया फहद। पीटीआई की रैली के बाद शादरा से गजुमता तक मेट्रो बस सर्विस बंद। सुबह मेट्रो बस सर्विस गजुमता से MAO कॉलेज तक चलाई जा रही थी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल किया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी ज़ैन, बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लिबर्टी से नासिर बाग तक जो रैली का एहतमाम किया गया है, इसके शहर लाहौर के मास ट्रांजिट सिस्टम पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आज सुबह मेट्रो बस चादरा से लेके गजुमता तक अपने मामूल के मुताबिक चलाएगी, लेकिन जैसे ही कारकुनान
लिबर्टी चौक पहुंचना शुरू हुए तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की हदायत पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में गजुमत्ता से लेकर शादरा तक मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और इसको मुअत्तल करने की बुनियादी वजह सिक्योरिटी खदशात हैं। पीटीआई की रैली का भी वही रूट है जहां से मेट्रो बस चलाई जाती है, जिसके लिबर्टी चौक से अपनी रैली का आगाज करके फिरोजपुर रोड पर पहुंचेगी और उसके बाद मेट्रो बस के जो ट्रैक है उसके साथ साथ ये चलती हुई नासिर बाग तक पहुंचेगी। तो इसी बात के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और जो इस रैली के रूट पर आने वाले स्टेशन हैं उनको भी सील कर दिया गया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको इस मेट्रो के स्टेशन पर तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को मेट्रो स्टेशन पर जाने की इजाज़त ना दी जाए। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, गवर्नर पंजाब से सनतकारों के वफ्द की मुलाकात, मुल्क की मौशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मौशी इस्तेहकाम आइन कानून की बालादस्ती और अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिए इस मुलाकात के हवाले से। गवर्नर पंजाब बलीगर मान से मारूफ सनतकार मियाँ तलत महमूद की वफद में मुलाकात की। वफद में मियाँ अब्दुर्रहमान अहमद फाजिल और मियाँ नुमान शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आइन कानून की बालादस्ती और अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना और इनकी इक़्तिसादी टीम बेहतरीन हिकमत अमली मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। वफाकी हुकूमत ने इसी पैक मनसूबों पर काम करने की रफ्तार बढ़ाकर गैर मुल्की सरमायाकारों के वसी मौके पैदा किए हैं। गवर्नर हाउस लाहौर को अवाम के लिए मुस्तकिल खोलने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार तय किया जा रहा है। हुकूमत तो करती है कि तमाम सनतकार और ताजर बरादरी मजदूरों को तयशुदा उजरत बर वक्त अदा करेगी। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत का अगला बजट ताजरों के कारोबार में तरक्की और रिलीफ का बायस बनेगा। ये कहना है मियाँ तलत महमूद का। उन्होंने मजीद कहा कि ताजर बरादरी टैक्स इस्लाहात पर हुकूमत से ताउन करेगी। जी शुक्रिया ज़ैन आपका। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट दाखिलों के लिए दरखास्तें मांग ली। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी के मुताबिक 29 मई तक दरखास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। 10 और 11 जून को दाखिला टेस्ट मुनक्किद किए जाएंगे। स्पोर्ट्स और गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी खसूसी दाखिले होंगे। आतिफ परवेज़ इसी पर बात करेंगे। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो इंटरमीडिएट सेक्शन है उसके लिए दरख्वास्तें मांगी गई हैं और दरख्वास्तें कल से जमा करवाई जा सकती हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाई जाएंगी और जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 29 मई रखी गई है। 29 मई तक दरख्वास्तें जमा होंगी। उसके बाद फिर दाखिला टेस्ट मुनक्किद किए जाएंगे जिनके लिए 11 और 10 जून मुकर्रर की गई है। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी के मुताबिक जो है ये दाखिला टेस्ट लाजमी होंगे। प्री मेडिकल की इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, कॉमर्स, ICS, आर्ट्स में दाखिले होंगी। महदूद सीटों पर ये दाखिले होने हैं। स्पोर्ट्स और गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी जो है वो दाखिले दिए जाएंगे। दाखिलों के लिए कल से दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शालामार एक्सप्रेस को लाहौर से कराची के लिए बहाल कर दिया गया है। शालामार एक्सप्रेस लाहौर और कराची से बैक वक्त सुबह 6 बजे चलेगी। शालामार एक्सप्रेस ट्रेन की बहाली वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर की गई। फहद अमीन से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी फहद, बताइएगा। आज बिल्कुल शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से कराची के लिए आज से जो है वो बहाल कर दी गई है। शालीमार ट्रेन को लाहौर और कराची के बैक वक्त जो है वो आज 6 बजे बहाल किया गया था और रवाना किया गया। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की बहाली वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर की गई है। इस हवाले से TS रेलवे मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर का कहना था कि शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह जो है वो आज वज़ीर रेलवे की हिदायत पर किया गया है। इफ्तिताह के मौका पर खुसूसी दुआ खैर भी की गई है। इफ्तिताह के मौका पर डिप्टी TS रेलवे इमरान मिशाल समेत दीगर अफसरान भी जो है वो मौके पर मौजूद थे। ट्रेन को खूबसूरत नई कोचिज के साथ जो है वो मुनफरद अंदाज में सजाया गया था। DS का कहना है कि वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर शालीमार ट्रेन एक्सप्रेस के जो है वो किरायों में आज एक माह के लिए जो है वो खुसूसी रियायत दी गई है।
मुसाफिरों को मई के पहले 15 दिन 20%, जबकि 16 से 31 मई तक जो है वो 10% किरायों में रियायत दी गई है। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से कराची जाते हुए रायबंड, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, खानपुर, रईवियर खान, रोहड़ी, नवाब शाह, हैदराबाद और लांडी स्टॉप करेगी। ट्रेन में 11 आपका इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया फहद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिकन की उड़ान न थम सकी। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, कीमत 587 रुपये से बढ़कर 590 रुपये फ़ी किलो। 6 रोज़ में ब्रायलर गोश्त 50 रुपये महंगा हो चुका। अंडे 274 रुपये फ़ी दर्जन तक बिकने लगे। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मसनूई किल्लत पैदा करके ब्रायलर की जो दाम है वो 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा दिए गए। आज 3 रुपये का इजाफा किया गया और ब्रायलर गोश्त की कीमत जो सरकारी नकनामे उस पर 590 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 2 दिनों में ब्रायलर 33 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया जा चुका है, जबकि मजमूई तौर पर 6 दिनों में ब्रायलर जो है 50 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हो चुका हुआ है। ब्रायलर की कीमतों में इजाफे की वजह से सार्फिन जो हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद से ब्रायलर यकसर बाहर हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ब्रायलर का कारोबार करने वाले दुकानदार जो हैं वो भी परेशान हैं। शहरियों की जानिब से महंगा ब्रायलर ख़रीदना जो है वो तर्क कर दिया गया, जिसके बायस शहर में ब्रायलर की फ़रोख्त जो है बुरी तरह मुतासर हुई है और इस हवाले से दुकानदार जो हैं वो खासा नाला दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक ब्रायलर फरोश मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ब्रायलर 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है, दुकानदारी किस हद तक मुतासर हुई, क्योंकि गाहक तो किसी दुकान पर नज़र नहीं आ रहा। रेट देखें 590 600 ही हो गया, मगर गाहक है नहीं, किसी गरीब ने क्या करना है। सस्ता था तो चलो कि किलो आधा किलो खा लेते, अब तो बेचारा गरीब बंदा जिसकी 1000-1200 रुपये दिहाड़ी लगनी है, अब बेचारे ने क्या करना है। 600 की मुर्गी तो नहीं जा सकता, सब्ज़ी वगैरह भी है, मसाले भी हैं, ठीक है ना। ये जितना सस्ता होगा ना तो हमारी सेल भी ज़्यादा होगी, मगर नहीं होगा तो देख लो आपके सामने फाड़े ही बैठे हुए सारे दुकानदार, मगर ये इनको पूछने खींचने वाला कोई नहीं है। तो बिल्कुल आपने जो है दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि ब्रायलर जो है एक आम आदमी की खुराक समझा जाता है, क्योंकि मटन और बीफ पहले ही शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर था, लेकिन ब्रायलर की कीमतें भी अब गैर मामूली सतह पर पहुँच चुकी हैं, जिसकी वजह से जो ब्रायलर की फ़रोख्त है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। खपत इस वक्त मार्केट में इंतहाई कम है, लेकिन इसके साथ साथ सप्लाई जो है उसे भी कम कर दिया गया ताकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप जो है वो बरकरार रखा जा सके और कीमतों को बुलंद सतह पर जो है वो रखा जा सके। और इस हवाले से जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि ब्रायलर की पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से ब्रायलर की जो पैदावार है वो कम हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ पैदा हुआ है। लेकिन शहर की सूरत हाल ये है कि इस वक्त ब्रायलर मार्केट जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, कीमतें गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी हैं और 590 रुपये फ़ी किलो आज कीमत मुकर्रर की गई है। 2 दिनों में ब्रायलर जो है 33 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया जा चुका है, जिसकी वजह से शहरियों ने ब्रायलर की ख़रीदारी जो है वो इंतहाई महदूद कर दी और दुकानदार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, बढ़ती महंगाई के हवाले से हमें अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। महंगाई ने शहरियों की खरीदारी महदूद कर दी। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के दाम भी बेलगाम। सब्जियों की सरकारी तय करदा निर्खों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त मामूल बन गए, जबकि फल भी गरीब की पहुंच से कोसों दूर। रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। इंतजामिया रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदामात ना उठा सकी। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जी फरोख्त करने लगे। प्याज 55 के बजाय 70 रुपए, टमाटर 38 के बजाय 50 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन चाइना 340 के बजाय 450 रुपए, अदरक 470 के बजाय 850 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि सब्ज मिर्च की कीमत 110 रुपए किलो मुकर्रर मार्केट में 130 रुपए किलो में बेची जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।